دانیل پارٹ 2۔ بچوں، اگرچہ خدا کے اپنے لوگ ہی اس کے نام کی تضحیق اڑاتے تھے اور اس کے چنے ہوئے لوگ اسیر ہو کر غیروں کی غلامی میں جکڑے جا چکے تھے، مگر خدا نے اپنے نام کو ملکوں اور قوموں کا مالک خداوند ثابت کر دیا، کیونکہ اس کے نام کی شان و شوکت غیر قوموں کے بادشاہوں پر بھی خوب عیاں ہو گئی۔ آج ہم مزید جانیں گے کہ دانیال کے کون سے حالات نے خدا کے نام کی شہرت غیر ممالک تک پہنچا دی۔ خواب میں ایک درخت۔ بچوں، بادشاہ نبوکد نظر کا ذکر آج کے دن تک تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کی بدنام زمانہ ستم ظریفی کے باوجود مختلف اقوام سے پکڑے گئے غلاموں کے ہاتھوں بنایا گیا شہر بابل دنیا کا خوشحال ترین، بڑا اور قابل دید نمونہ تھا۔ یہ مشرق وسطی کا اہم ترین صنعتی اور کاروباری شہر بھی تھا۔ اس دور میں نبوکد نظر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، مگر اس بادشاہ کو، جو اپنے آپ کو ایک دیوتا سمجھتا تھا، قادر مطلق خدا نے کس انداز سے سمجھایا کہ خداوند خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے۔ دانیال 4 باب 1 سے 9 آیت۔ نبوکد نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالی نے مجھ پر آشکارا کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے مہیب ہیں۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ حیرت انگیز! نبوکد نظر نے اپنی مملکت کے لوگوں کو خدائے قادر مطلق کے معجزاتی کام بتائے۔ نبوکد نظر یہودیوں کا نہیں بلکہ وہ تو بابل کا بادشاہ تھا۔ اب وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ میں نبوکد نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا، اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ چنانچہ ساحر اور نجومی اور قصدی اور فالگیر حاضر ہوئے، اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیال میرے سامنے آیا جس کا نام بلتشزر ہے، جو میرے معبود کا بھی نام ہے۔ اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، اے بلتشزر، ساحروں کے سردار، چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں، اس لیے جو خواب میں نے دیکھا
उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। अब बादशाह को अपना ख्वाब याद आ चुका था। लेकिन साहिब और फाल्की उसकी ताबीर ना बता सके, क्योंकि सरबस्ता राज तो सिर्फ खुदा ही अफशा कर सकता है। बादशाह का ख्वाब सुनने के बाद दानियल बहुत चकराया। वो उलझन में था कि उसे उसकी ताबीर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसमें उस घमंडी बादशाह के लिए खुदा की तरफ से एक बड़ा सबक मौजूद था। ख्वाब दरअसल था क्या? बादशाह ने ख्वाब में एक ऊंचा दरख्त देखा था। दानियल ने बादशाह को ख्वाब की ताबीर यूं बताई। दानियल 4 बाब 22 से 26 आयत। ऐ बादशाह, वो तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कंधा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो कि वो आसमान की शबनम से तर हो। और जब तक उस पर 7 दौर न गुजर जाए उसका बकरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावन के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कंधा को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। बच्चों, नबूकदनेस्सर का ख्वाब कोई खुशगवार ख्वाब न था। उसके गुमांड की वजह से खुदा ने उसकी अकल खबत कर ली। उसे लोगों से किनारा करके जंगली जानवरों के साथ रहना था। उसे बैल की मानिंद घास खानी और खुले आसमान की शबनम में भीगना था, तावकत ये कि जान ले दुनिया का असल हाकिम कौन है। क्योंकि ये एक खौफनाक आजमाइश थी, इसलिए दानियल ने बादशाह को तलकीन की और कहा। दानियल 4 बाब 27 आयत। इसलिए ऐ बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। बच्चों, क्या नबूकदनेस्सर ने दानियल की तलकीन पर कान लगाई? बादशाह एक बैल की मानिंद हो गया। दानियल 4 बाब 29 से 33 आयत। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बच्चों, दानियल की तंबीह के 12 माह बाद तक कुछ भी रूनमा नहीं हुआ। बादशाह नबूकदनेस्सर आहिस्ता आहिस्ता अपना खौफनाक ख्वाब भूल भुला गया और अपनी अजमत के घुमंड में डूबा रहा। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबले आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है कि
दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबूकदनजर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रहे और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा। और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनजर बादशाह पर ये बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा। और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिंद बढ़ गए। बच्चों, ये खौफनाक सूरत हाल सर पर आन पड़ी। दानियल के ख्वाब की ताबीर बताने के 12 माह बाद, जबकि नबूकदनजर अपनी ही शान में कसीदा पढ़ रहा था, खुदा ने उसकी अकल खबत कर ली। वो किसी बैल की तरह घास खाने लगा, बयाबान में सोने को निकल गया। उसके बाल उकाब के परों की माने और उसके नाखून किसी परिंदे के चुंगल की मानिंद बढ़ गए। खुदा चाहता था कि वो जान ले खुदावंद खुदा की हस्ती ही आला व बरतर है, जो जमीन की सारी ममलकतों पर हाकम व मुख्तार जिसे चाहे दे, और नबूकदनजर की सारी काबिलियत बेमानी चीज है। तब नबूकदनजर वहशी जानवरों की मानिंद हो गया। 7 बरस बेयाबान की तन्हाई में गुजारे, यहाँ तक के खुदा की तरफ से मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया। नबूकदनजर की अकल लौट आई। दानियल 4 बाब 34 से 37 आयत। और इन अयाम के गुजरने के बाद में नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हमदो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है। और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया है, और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी ममलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजोनी हुई। अब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताजीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है। और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। बच्चों, बादशाह नबूकदनजर ने अपनी हैसियत बहाल होने पर लोगों को बताया कि जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील भी कर सकता है। वो जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके
बच्चों, ये क्या ही शानदार बात है। क्या यूं ही नहीं, खुदावंद इसराइल के खुदा ने अपनी शान और अपना इख्तियार सब कौमों को एक गैर कौम के बादशाह की जबानी बता दिया। पहले तो खुदा सिर्फ इसराइल में जाना जाता था, मगर अब खुदा ने खुद को सब कौमों पर आश्कारा कर दिया। बच्चों, नबूकदनजर जान गया इंसानों की सारी दुनिया में सिर्फ खुदावन खुदा का ही राज चलता है। उसने बड़ी ही आजिज़ी से दुनिया को बताया, खुदावन खुदा जिस किसी को चाहता है मुल्कों की हुक्मरानी दे सकता है। ये हुक्मरानी ना तो अल्लाह के फतह करने से मिलती है, ना घोड़ों या तलवारों से। तो क्या उसके बेटे बेलशस्सर को भी खुदा की ताकत और कुदरत का ऐसा गहरा एहसास हो पाया? घमंडी बेलशस्सर। दानियल 5:1-4 आयत। बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफत की और उनके सामने मैनोशी की। बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनजर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमे उनमें मैं ख्वारी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें मैं पी। उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की। अरे वाह! बच्चों, ये बेलशस्सर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने ये हिम्मत ही कैसे की कि सोने के ज़रूफ जो खुदा के घर से जो यरूशलेम में है लाए जाएं, और फिर ये कि उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद भी की। दीवार पर लिखे गए अल्फाज। दानियल 5:5-9 आयत। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गच पर लिखा। और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा, तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चिल्ला कर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगीरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे अर्गवानी खिलत पाएगा और उसकी गर्दन में जरीन तोक पहनाया जाएगा और वो ममलकत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ता को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तब बेलशस्सर बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरा का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। बच्चों, एक बार फिर बादशाह के सब अक्लमंद मशीर हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ता को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। सिर्फ खुदा ही है जो सरबस्ता राजों से पर्दा उठा सकता है। दानियल 5:10-12 आयत। अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्नगाह में आई और कहने लगी,
اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکد نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی۔ اسی دانیال میں جس کا نام بادشاہ نے بیلتشزر رکھا تھا، پس دانیال کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ بچوں، اسی کشمکش میں بیلشزر نے دانیال کو بلوا بھیجا کہ ملکہ ماں نے یہ بات تجویز کی تھی۔ دانیال ہی ملک میں واحد ایسا سردار تھا جو مہم میں حل کر سکتا تھا۔ وہ 70 برس سے بابل میں رہائش پذیر تھا۔ اسے جوانی میں اسیر کیا گیا اور اب وہ 90 برس کے لگ بھگ ایک بوڑھا شخص تھا۔ دانیال 5 باب 13 اور 16 سے 23 آیت۔ تب دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیال سے پوچھا، کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، پس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت میں 3 درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکد نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں و ترساں ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا۔ لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا، تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گور خروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو نے اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں مے خواہی کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بابل کی بربادی۔
बच्चों, दानियल ने बेलशज़र को इंसानों की जिंदगियों को थामने और तमाम इंसानों का निजाम संभालने वाले खुदा की तमजीद के बरअक्स हाथों में थामे बेजान ज़रूफ की सताइश करने पर बुरा भला कहा। दानियल ने खुदा की आने वाली पकड़ का ऐलान भी कर दिया। दानियल 5 बाब 24 से 31 आयत। बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरसीन। और इसके मायने ये हैं, मिने यानी खुदा ने तेरी ममलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, तकी यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला, फरीस यानी तेरी ममलिकत मुनकसिम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई। तब बेलशज़र ने हुक्म किया और दानियल को अरगवानी खिलत पहनाया गया और जरीन तोक उसके गले में डाला गया और मनादी कराई गई के वो ममलिकत में तीसरे दर्जा का हाकिम हो। उसी रात बेलशज़र कसदियों का बादशाह कत्ल हुआ। और दारामादी ने 62 बरस की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। खुदा ने अपना वक्त आने पर बाबल को हटाकर उसकी जगह मादी फारसी सल्तनत को दे दी। बच्चों, तकरीबन 160 साल पहले खुदा ने यसाया नबी की मार्फत बाबल के मुतल्लिक खबरदार कर दिया था। तकरीबन 70 साल पहले हबकूक और यर्मिया के जरिया भी बाबल की तबाही से आगाही दी गई। आखिर क्या वजह थी कि खुदा बाबल को तबाह कर देना चाहता था? आए देखते हैं यसाया ने क्या कहा था। यसाया 47 बाब 6 और 10 आयत। मैं अपने लोगों पर गजबनाक हुआ, मैंने अपनी मीरास को नापाक किया और उनको तेरे हाथ में सौंप दिया। तूने उन पर रहम न किया, तूने बूढ़ों पर भी अपना बारी जुआ रखा, क्योंकि तूने अपनी शरारत पर भरोसा किया। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी हिकमत और तेरी दानिश ने तुझे बहकाया और तूने अपने दिल में कहा, मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। खुदा ने बाबल को हबकूक के जरिए कैसे डांटा? हबकूक 2 बाब 5 और 8 आयत। बेशक मुतकब्बर आदमी मैं की मानिंद दगाबाज है, वो अपने घर में नहीं रहता, वो पाताल की मानिंद अपनी हवस बढ़ाता है, वो मौत की मानिंद है, कभी आसूदा नहीं होता, बल्कि सब कौमों को अपने पास जमा करता है और सब उम्मतों को अपने नजदीक फराहम करता है। क्योंकि तूने बहुत सी कौमों को लूट लिया और मुल्क व शहर व बाशिंदों में खून रेजी और सितमगरी की है, इसलिए बाकी मांदा लोग तुझे गारत करेंगे। खुदा ने कहा, बाबल की सल्तनत खून रेजी और सितमगरी की दिलदादा है। उसे खुद पर बहुत घुमंड है और खुद को खुदा समझती है। खुदा ने यिर्मयाह की जुबानी क्या कहा? यिर्मयाह 50 बाब 29 आयत। तीर अंदाजों को बुलाकर इकट्ठा करो कि बाबल पर जाएं, सब कमानदारों को हर तरफ से उसके मुकाबिल कैमा जन करो, वहां से कोई बच ना निकले, उसके काम के मुआफिक उसको बदला दो, सब कुछ जो उसने किया उससे करो, क्योंकि उसने खुदावंद इसराइल के कदूस के हुजूर बहुत तकब्बर किया। यिर्मयाह 51 बाब 8, 31 और 32 आयत। बाबल यकायक गिर गया और गारत हुआ
उस पर वावेला करो, उसके जख्म के लिए दिल सांग लो, शायद वो शिफा पाए। हर कारे से मिलने को और कासिद से मिलने को दौड़ेगा कि बाबल के बादशाह को इतला दे के उसका शहर हर तरफ से ले लिया गया। और गुजरगाहें ले ली गईं और नेस्तान आग से जलाए गए और फौज हड़बड़ा गई। यसाया नबी की मार्फत खुदा ने पहले ही बाबल का अंजाम बता दिया। खुदा ने ये भी बताया कि बाबल के पीतल के दरवाजे तोड़ डाले जाएंगे। चुनांचे ईरानी अफवाज बगैर किसी जंग के बाबल पर काबिज हो जाएंगी। यसाया 45 बाब 1 से 3 आयत। खुदावंद अपने ममसूख खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं और बादशाहों की कमरें खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बनाऊंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बीनों को काट डालूंगा और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूँ जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यसाया 45 बाब 13 आयत। रब्बुल अफवाज फरमाता है मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूंगा। वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और इवज लिए आजाद कर देगा। यर्मिया 51 बाब 11 आयत। तीरों को सैकल करो, सिपरों को तैयार रखो। खुदावंद ने मादियों के बादशाहों की रूह को उभारा है क्योंकि उसका इरादा बाबल को नेस्त करने का है, क्योंकि ये खुदावंद का यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। बच्चों, अगरचे बाबल की हैसियत खुदा के आगे एक खिलौने की सी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो लोगों को फजूल ही मारता रहे या कौमों को बेरहमी से ताराज कर दे। खुदा जानता है कि वो खुदा है। जब लोग अपने आप में खुदा बन बैठते हैं तो ये बात खुदा को नहायत बुरी लगती है। चुनांचे खुदा ने 538 कबल मसीह में मादियों और ईरानियों को उठाया कि रातों रात बाबल पर हावी हो जाएं। मदहोशी के इसी नशे में बाबल की शान अपना अंजाम पा गई। बच्चों, क्या दानियल के रोजो शब में कोई तब्दीली आई? दानियल ने 70 सालों तक दुआ की। दानियल 9 बाब 1 से 3 आयत। दारा बिन अक्सवीरस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन वर्षों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावन का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावन खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। बच्चों, दानियल 70 सालों से असीर था और अपने घर से बिछड़े 70 बरस बीत चुके थे, मगर खुदा का घर उसके दिल से कभी जुदा नहीं हुआ था। उसने असीरी में जकड़े दूसरे यहूदियों में
अपने पुरवकार और बाइज्जत मर्तबा पर कभी फख्र नहीं किया था। दूसरे नबियों की तरह दानियल ने भी खुदा के हजूर अपनी कौम के गुनाहों का एतराफ किया और बख्शिश चाही। दानियल 9 बाब 15 से 19 आयत। और अब ए खुदावन हमारे खुदा, जो जोर आवर बाजू से अपने लोगों को मुल्के मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है। हमने गुनाह किया, हमने शरारत की। ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहरो गजब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुकद्दस से मौकूफ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नजदीक जाए मलामत हुए। बस अब ए हमारे खुदा, अपने खादिम की दुआ और इल्तमास सुन और अपने चेहरा को अपनी ही खातिर अपने मकदस पर जो वीरान है जलवागर फरमा। ए मेरे खुदा, कान लगा कर सुन और आंखें खोल कर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख कि हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मनाजात करते हैं। ए खुदावंद सुन, ए खुदावंद माफ फरमा, ए खुदावंद सुन ले और कुछ कर। ए मेरे खुदा, अपने नाम की खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। बच्चों, एक सच्चे नबी ने दुआओं में एतराफे गुनाह किया। खुदा के ज़हन और एहसासात को समझने पर खूब गौर खोज किया। दानियल को एहसास था कि यरूशलेम की बदहाली और बेचारगी का 70 साल पुराना दौर अब तमाम होने को है। चुनांचे उसने खुदा से दुआ की कि अब इसमें मजीद देर ना हो। दानियल और भूखे शेर। बच्चों, दानियल 70 बरस से बाबल में एक अच्छे ओहदा पर फाइज था। वो वजीर आजम के तकरीबन हम पल्ला था। आला शान, इख्तियार, हमा वक्त बादशाह को अकल और इंतजामी हिकमत अमली बताने पर तैयार। मगर अब एक दूसरी रियासत का बादशाह वहाँ हाकम बन गया। ये दूसरा बादशाह क्या करने को था? दानियल का कत्ल या उसकी तरक्की? होना तो यही था कि नया बादशाह फरेबकारी से बचने के लिए पुरानी हुकूमत के ओहदादारों को निकाल बाहिर करता। क्या दानियल की जिंदगी दांव पर लगी थी और खुदा जो हमेशा से दानियल के साथ था, क्या उसकी हिफाजत और देखभाल जारी रखेगा? दानियल 17 साला नौजवान के रूप में बाबल की असीरी में जकड़ा गया। 70 साल बीत जाने पर तकरीबन 90 बरस का एक बूढ़ा शख्स। आए देखते हैं खुदा इस 90 साल के बूढ़े शख्स से क्या काम लेने को था। दानियल 6 बाब 1 से 3 आयत। दारा को पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम ममलिकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। दारा बादशाह ने 3 वजीर मुकर्रर किए जो कि 120 बा-इख्तियार नाज़मीन पर निगरान थे कि सारी ईरानी सल्तनत का निजाम चले
اور چونکہ دانیال اپنی روح میں دوسرے وزیروں سے بہت مختلف صلاحیتوں کا مالک تھا، چنانچہ بادشاہ کو اسے سب پر فوقیت دینے کا خیال سوجا۔ بہت خوب۔ بچوں، اتنی اعلیٰ حیثیت وہ تو تقریباً ایک بادشاہ ہی ٹھہرا، چنانچہ دوسرے دو وزیر دانیال سے جان چھڑانے اور اس کا عہدہ چھین لینے کے چکر میں پڑ گئے۔ دانیال سے حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے اس کے قتل کی سازش تیار کر لی۔ دانیال 6 باب 4 سے 5 آیت۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملکداری میں دانیال پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیال کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ بچوں، ایک جتھا بن گیا جو دانیال کے خلاف نظام حکومت کے معاملات میں کسی کوتاہی یا بے اعتدالی کی کھوج میں لگ گیا، مگر انہیں ایسی کوئی بھی کمزوری نہ مل پائی، کیونکہ دانیال وفادار اور قابل اعتماد شخص تھا۔ اس کے کردار میں نہ تو کوئی خرابی تھی اور نہ ہی کوتاہی۔ اب چلاک و عیار لوگ جو اس کی خامی یا کوتاہی کی ٹو میں لگے تھے، انہیں کوئی موقع ہاتھ نہ آئے۔ انہوں نے سوچا سوائے ایمان میں کسی خامی کے دانیال میں کوئی نقص نہیں مل سکتا کہ بادشاہ کو اس کے خلاف اکسایا جا سکے۔ آخر کار انہیں ایک تدبیر سوجھ ہی گئی جس سے دانیال کو یقینی طور پر جال میں پھنسایا جا سکتا تھا۔ دانیال 6 باب 6 سے 9 آیت۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشاورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ، اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے۔ بچوں، جو لوگ دانیال کو پھانسنا چاہتے تھے انہوں نے دن رات اس کی ٹو لگائی۔ معلوم ہوا کہ دانیال دن میں 3 بار خدا کے آگے دعا میں حاضر ہوتا ہے، کبھی ناغہ یا بے قاعدگی نہیں کرتا۔ انہیں لگا یہی وہ کمزوری ہے جس پر وار کیا جائے تو اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تبھی انہوں نے سازش گھڑ لی کہ کوئی بھی شخص اگلے 30 دنوں میں دارا بادشاہ کے علاوہ کسی بھی معبود یا انسان سے کوئی درخواست کرے تو شیروں کی کچھار میں ڈالا جائے۔ بچوں، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا دانیال کے 3 دوستوں نے سونے کے بڑے مجسمہ کے آگے جھکنے پر آگ میں جل مرنے کو ترجیح دی۔ اب دانیال شیروں کے دانتوں اور پنجوں سے ہلاکت کے خطرے سے دوچار تھا۔ کیا وہ خدا سے اپنی محبت کی یکسوئی بدل ڈالے گا؟ کیا وہ اپنی 70 سالہ دعا کی عادت بدل ڈالے گا؟ دانیال 6 باب 10 آیت۔ اور جب دانیال نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ بہت خوب، دانیال کتنا دلیر تھا۔ ان حالات میں بھی وہ خدا کے حضور شکر گزاری اور دعا کیا کرتا۔ بالکل ہمیشہ کے معمول کی طرح۔ مگر اس کا مطلب تھا
उसे शेरों की कुछार में फेंका जाएगा। तब क्या होगा? दानियल 6 बाब 11 से 15 आयत। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि हे बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा? बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि हे बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है न तेरी परवाह करता है और न उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे कि ए बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आईन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। बच्चों, दारा बादशाह नहीं चाहता था कि दानियल को मार डाला जाए। वो सूरज डूबने तक दानियल की जान बचाने की राह ढूंढता रहा। मगर जो दानियल की जान लेने पर तुले थे बार बार बादशाह को उकसाते रहे। दारा जानता था कि शाही फरमान को बदलना मुमकिन नहीं। दानियल 6 बाब 16 से 20 आयत। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? गमज़दा बादशाह सारी रात सो न सका। सूरज की पहली किरण के साथ उठ बैठा और शेरों की मांद की तरफ दौड़ा। दानियल को पुकारा, तभी ये मौजज़ा हो गया। दानियल की मानूस आवाज में जवाब आ गया। दानियल 6 बाब 21 से 23 आयत। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। बस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मांद से निकालें। बस दानियल उस मांद से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया था। बच्चों, ये क्या ही शानदार गवाही थी, क्या यूं ही नहीं? खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। अगरचे दानियल सारी रात शेरों के साथ रहा, उसे एक खराश तक नहीं आई, बिल्कुल आग की जलती भट्टी की तरह जिसमें उसके तीनों दोस्त टहलते फिरे। क्योंकि खुदा उनके साथ था। उनके बदनों से झुलसने की बू तक नहीं आई थी।
खुदा अपने नाम के जलाल के लिए लोगों की जानें बचाता रहा। पहले भी बाबल में खुदा ने आग की भट्टी के साथ एक मौजज़ा किया ताकि लोग जान लें कि इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है। और अब मादियों और फारसियों की इस नई सल्तनत में खुदा ने फिर से साबित कर दिया, इसराइल का खुदा सच्चा खुदा है। दारा बादशाह ने खुदा की शान बयान की। दानियल 6 बाब 24 से 28 आयत। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए। और इससे पेशतर के मांद की तह तक पहुँचे, शेरों ने उनकी हड्डियां तोड़ डाली। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा। तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलिकत के हर सूबा के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसा व लर्जा हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलिकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। बस दानियल दारा की सल्तनत और खोरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। बच्चों, एक बार फिर खुदा ने गैर कौम के बादशाह की जुबानी अपने नाम की गवाही दिलवाई और अपनी शान दुनिया को बताई। एक बार फिर हमने देखा कि जब हम खुदा के नाम का वकार जाहिर करें, उसकी शान बयान करें, तो वो हमें उठा खड़ा करता और हमारी इज्जत बढ़ाता है। तभी तो नए बादशाह के सामने दानियल की शान और शौकत खूब बढ़ी। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मैंने यही जाना, मुसीबत की हर घड़ी में तेरा ही वजूदे बेकरां हैरान कुन मौजज़े कायम करता है। अनजाने ख्वाब की यादें कायम रहे या गुमगश्ता, लपकती आग के शोले हो या भूखे बिपरे शेरों की आमाजगाह, हर मरहला तेरी ही शानदार हस्ती का जाहो जलाल है। तूने अजनबी ईमान से बेबहरा बादशाहों के जरिया दूर दराज कौमों पर अपना नाम उजागर किया कि सब जान ले तू ही खुदाए बुजुर्गो बरतर है, जो अपने लोगों पर सरबस्ता राज खोलता है। बादशाह नबूकदनजर हो या दारा, उन्हें मानना ही पड़ा, तू ही अबदी खुदाए जिंदा है। अजनबी बादशाह अपनी अपनी कौम के आगे बिलक ही पड़े के दानियल के खुदा का खौफ माने और उसका अदब करें। अगरचे इसराइलियों की तो पहचान ही गुलामी थी, फिर भी ए खुदावन, तूने अपने नाम को बेवकूफ होने नहीं दिया। प्यारे बाप, ये समझने में मेरी मदद फरमा कि मुश्किल की हर घड़ी, नाकामी का हर जख्म, खौफो दहशत, उलझन और परेशानी सिर्फ इसलिए आते हैं कि तेरा नाम और जाहो जलाल जाना और पहचाना जाए। दानियल और उसके साथियों की मानंद बनने में मेरी मदद फरमा कि खौफो दहशत छोड़ूं, दिलेर बन जाऊं, साथ का हर शख्स मेरे वजूद में तेरी झलक पाए। पुकार उठे, ए खुदावंद खुदा, तू ही वाहिद सच्चा खुदा है। तेरा शुक्र हो ए बाप, यीशु के नाम में
یہ میری دعا ہے، آمین۔ बाइबल की याद करने की आयत। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ज़बूर 23:4 आयत।